wisdom and positivity. Ngatiladasla lukhrol zangpo jigyote nongle. Rashtriyik tre sangsmonla. Gobas nampa phamalangya stanga HSP luktuk thamala juletang snato dile. Diringe donzin panga tsiringudun tange trupas tanzin wangyal kavita zomski. Ngaja tsanke choknas diringe lokde lokhor gingin mor peps pa gastu juin yang chon pale. Diring ika tsangma jalzomskiot pe mikjibo Slobde lokhor gingin mor turchen stivar zompain. Slobda e lokhor gingin moni. Mangs yang kapchan yang nashtachan nin mojigi. Chifia juna. Somskote lojigi nanga kangal bardo mangpojig namste. Dugdas lexport tope gato tangthat pengin mojigi. Ta tsame sangs ganlange zinda gape abida jua pulin. Kongwe kaskote diringe gasui sumshat sarchesla. भी सुहाना है, फिजाओं में रंग है, शाम भी सुहाना है। आज हमारा स्कूल कुछ ज्यादा ही महक रहा है क्योंकि आज वार्षिक उत्सव की ये प्यारी कहानी है। Ladies and gentlemen, respected chief guests, principal, teachers, parents and my dear friends, a warm welcome to all of you. Today is a day of joy, a day of celebration and a day of looking back at achievements with pride. We feel delighted to welcome you all to the annual function of PM Shri Government Higher Secondary School Tikse. Success is not measured in trophies but in effort, discipline and passion. And today we have gathered here to celebrate the same spirit. This day is going to be a beautiful blend of talent, creativity, enthusiasm and hard work showcased by our student. Now I would request our beloved student, distinguished guests, dear students and teachers. It is my honor to welcome you all today. We are fortunate to have with us our Ma'am Bhanu Prabha, IS, Secretary School Education, UT Ladakh, our guest of honor, Ma'am Tashi Dolma, Education Officer Lay and all other guests. I warmly welcome you all to our school annual day celebration. Today is a very special day for all of us. We have gathered here to celebrate our achievements, our talents and the hard work we did throughout the year. This day gives every student a chance to show their abilities and shine on the stage. I thank our headmasters and teachers for guiding us every day and helping us to grow. I also thank all parents for their support and encouragement. Jangi mito dudki pujong spa Sergi lun pos tabur jit pesku Shaki galpe javla chatsalo ngaji sukuli VC member chairman ka riglan le horsos pe member lanjas ka abidi le ka mumtaz le yang thikse yuli yulkhak sosonas kyotkani ama chokpe uskyon lanjas ngaji thatu thama juksi yotkani lopta changme lopji lanjas diri ir kasuinas kyotkani pere lanjas yang ir kasulas ning tapa ning na sungsi yotkani ye loptu lanjas sangmala ngaja lopte gergantang thugu changme chongna ning tapana tashi delejin मैं आप लोगों के समक्ष यहाँ पे अपने स्कूल के वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो इस स्कूल के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊँ तो टिक्से मॉनेस्ट्री के आंगन में पवित्र आंगन में बसे यह स्कूल 1921 में स्थापित हुआ।
इसके बाद 88 में हाई स्कूल हुआ और आज ये हाई सेकेंडरी हुआ है। तब से लेकर आज तक इस स्कूल ने समाज को बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर, बहुत सारे ऑफिसर जो है समाज को प्रदान किया है। इन्होंने न केवल अपने ठीक से गाँव का ही नहीं बल्कि पूरे लद्दाख का नाम रोशन किया है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं और मेरे स्टाफ मेंबर पूरे शिद्दत से कठिन प्रयास के साथ इन बच्चों को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमने 4 हाउस में बांटकर बार बार इनका कंपटीशन किया जाता है, जैसे ऐसे राइटिंग्स और स्पीच कंपटीशन, पोएम रिसिटेशन, ड्राइंग कंपटीशन, एथलेटिक कंपटीशन, गेम कंपटीशन। इन सब में जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आए हैं उन सबको आज सम्मानित किया जाना है। हमारे स्कूल में केवल पाठ्यक्रम के क्लासेस ही नहीं बल्कि बहुत बढ़िया तरीके से वोकेशनल एजुकेशन में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का हमें सब्जेक्ट मिला हुआ है। अटल टिंकरिंग और कंप्यूटर जो है डेली बेसिस पर 1st to 10th क्लास तक के बच्चों को सिखाया जाता है। हमारे यहाँ केवल योगा और मेडिटेशन, योगा और ये सेल्फ डिफेंस जो है केवल कुछ दिनों का या कुछ हफ्तों का प्रोग्राम नहीं होते हैं। ये पूरा साल भर हर असेंबली में, जैसे मंडे को जुम्बा डांस के साथ हम शुरू करते हैं, ट्यूसडे को मेडिटेशन,
शक्ति, चिमडे, शेद, ठीक से छुशुत, ये पूरा हो सकता है इफ दिस स्कूल परफॉर्म्स लाइक द बेस्ट ऑफ द स्कूल्स। तो ये स्कूल बहुत अच्छा कर रहा है आप लोगों का। देखो मैम, ये भी है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट तो है ही है। काटाशी टुंडू मेरे साथ डीसी ऑफिस में मेरे सीनियर थे, काम कर चुके हैं, तो इनको ये बहुत जागरूक है एजुकेशन की तरफ। और हमें ठीक से मॉनेस्ट्री के रिनपोछे जी हमें बहुत साथ देते हैं। यहाँ पर अब्बास आबिदी साहब है, मैं आपको बोलना चाहूँगी सर, आपको याद होगा हम एक बार जामयांग स्कूल गए थे, वहाँ पर आप चीफ गेस्ट थे, तब आप एग्जीक्यूटिव काउंसलर होते थे, तो मैं असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू होती थी। बट मुझे वहाँ पर जब लेक्चर देने के लिए बुलाया गया, मैंने बोला मैं लेक्चर नहीं दे सकती हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं नहीं बोल सकती हूँ। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत स्टेज मतलब मुझे बहुत स्टेज फेयर था। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मुझे स्टेज, मेरे मन से स्टेज का डर निकाल दिया। नाउ आई कैन कॉन्फिडेंटली स्पीक, मतलब हर जगह किसी भी मौके पे मैं बोल सकती हूँ। तो मुझे लगता है अगर आप कंसिस्टेंटली किसी चीज़ को परस्यू करो तो ऐसा नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है। बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं। लास्ट टाइम इस स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, तो मैडम यांगडोल ये है, रिजल्ट अच्छा आया, इसके लिए आपको मुबारकबाद देती हूँ। इसके साथ मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि रिजल्ट अच्छा आने से, देखो हम लोग, मैं और मैडम हम लोग थोड़े ग्रीडी हैं। अब रिजल्ट अच्छा आया तो हमें लगता है बच्चों का 90% में चले जाए बच्चे, आपके बच्चे टॉप करे, यूटी में टॉप करे, साइंस में टॉप करे, इंग्लिश में टॉप करे, बोटी में टॉप करे, सब्जेक्ट में टॉप करे। अभी आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी व्हेन आई सॉ दिस गर्ल्स एंकरिंग। I could feel, I could sense, and we were discussing that their diction, their pronunciation was very very good। तो बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है, देखो मैं ये बोल रही थी कि हम लद्दाख में हम पैदा हुए, तो हमें हिंदी तो बोलनी आनी चाहिए क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है। इंग्लिश हमें बोलनी आनी चाहिए क्योंकि वो ग्लोबल लैंग्वेज है, और लद्दाखी तो बोलनी आनी चाहिए क्योंकि वो तो वो हमारी मातृभाषा है। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। तो मुझे लगता है जो बहुत बाहर से पढ़ के आते हैं, बाहर के स्कूल से जो पढ़ के आते हैं, दिल्ली, देहरादून, जब और बाहर जो भी पढ़ के आते हैं, जब यहाँ आते हैं तो वो लद्दाखी में जब कन्वर्सेंट नहीं होते हैं, खोना लद्दाख से नास्पेरा तंग मैशेस ना तेवांग देमोजिक थोआ मिरुक सामारा याले ये सामारा माने छात सांस पे योनतान वो थोप गोस लद्दाख से नास्पेरा तंग चेसा शेस गोत इंग्लिश हिंदी नास्पेरा तंग चे शेस गोस यंपो कजु कॉन्फिडेंट दुक दक्सा साइंस एग्जीबिशन नंगता नेशनल लेवल का रिप्रेजेंट चुआसों क्या खो आप ते पोमो लेंगा थुकचे से स्काप स्टॉप्स ngaje डाइट ला जब पोमो या पुथुगा ना पुंगे से स्पेन बेंगलोर अच्छा ना बेंगलोर या गया लचो या चरसबा ना मन गया लचो अच्छा मैम आई विल डू वेरी गुड, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट लॉयल तो खोए कॉन्फिडेंस पोथों टिंगे ना दक्सा जिक्स नो पा इंगाजा जिक्स नो ngaje तिन्ना जरा दिले। मैं भानु मैम को भी बोल रही थी कि मैडम हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, हम एग्जाम्पल, वी विल लीड बाय एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल दिखाएंगे कि बच्चे हमारे कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं। अभी हम होमवर्क कर रहे हैं कि पिछले 5 साल में हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कितने डॉक्टर्स बने। अब ये तो मैम एक बेंचमार्क है, कितने इंजीनियर्स बने, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर बने, कितने अच्छे एग्जीक्यूटिव काउंसलर बने, कितने अच्छे पॉलिटिशियन बने, कितने अच्छे सरपंच बने। तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चा ऑफिसर ही बने, पर मकसद ये है एजुकेशन का कि एजुकेशन मिलने के बाद आप एक अच्छे इंसान बनो, आपको सही और गलत की पहचान हो, आप हर चीज में अच्छे हो। अगर आप किसी सोसाइटी में बैठे हो, आपको कोई डिस्कशन करना है, तो उस डिस्कशन में आप एक मीनिंगफुल डायलॉग बोल सको। मुझे लगता है कि इस स्कूल में कोई कमी नहीं है। एक तो इस स्कूल का कम्युनिटी बहुत जागरूक है, आपके टीचर्स बहुत डेडिकेटेड है, आपका मैडम यांगडोल जैसी लीडर है, मैडम बानू प्रभा तो है ही है। मुझे भी खुशी, मुझे ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में आने की सिर्फ मैं सबको बोलती हूँ कि मेरी सिर्फ यही खुशी है कि मुझे बानू मैडम जैसी बॉस मिली, जो मुझे मैं अगर बोलती हूँ कि मैडम इस स्कूल में हम ऐसा करेंगे, इस स्कूल का हम इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे, इस स्कूल में हम क्या कहते हैं डिजिटल लैब बनाएंगे, इस स्कूल में हम नया बाल वाटिका का सामान लाएंगे, इस स्कूल में हम स्मार्ट टीवी लाएंगे। तो मैडम कहते हैं आपको जो करना है, एजुकेशन अगर अच्छा हो सकता है तो आपको जो करना है करो। आज की डेट में हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में वी हैव द बेस्ट बॉस। मुझे तो लगता है मैंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के साथ काम किया, जितने दिल से और जितनी शिद्दत से मैडम एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए काम करती है, तो मुझे लगता है कि हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हम तो मेरे को तो रिटायर होके भी यहीं रहना है। तो प्लीज़
मैं एक बार फिर से इस स्कूल को कंग्रेचुलेट करूंगी कि आपने इतना अच्छा एनुअल डे किया। बल्कि मैडम को मैंने कहा कि मैडम बहुत ठंड भी है और हम थोड़ा बिजी भी है, तो आप डिले तो नहीं कर सकते हो। मैडम ने कहा कि हमारे बच्चे बहुत प्रिपेयर करके अब वो बहुत मायूस हो जाएंगे, तो आप प्लीज आइए। तो हमें आज कहीं और भी जाना था, मैडम ने तो कमिट भी किया था, तो उसको थोड़ा डिले करके फिर हम यहाँ पर आए। जब आना होता है तो हम भी बहुत सारे पैरामीटर्स देखते हैं ना, कि यहाँ पर इनरोलमेंट कैसा है, स्कूल का लीडरशिप कैसा है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कैसा है, लोग यहाँ पर कितने वो क्या सजग हैं, जागरूक हैं। तो मैम, दिस स्कूल इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। So I on behalf of the headmaster and the community, I assure you that हम enrollment बढ़ाएंगे। मैडम तो 200 बोल रही है, तो हम प्लीज 250 करेंगे। और हम लोग बिल्कुल नया बाल वाटिका सेट आ चुका है। अब मुझे ये नहीं पता है आपके स्कूल में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, वो बिल्कुल आ चुका है आपके स्कूल में, 2-3 दिन में पहुंचाएगा। फिर मैडम आपकी जिम्मेवारी है अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को जिस तरह से आपने पढ़ाना है, क्या करना है, आपने जितना उसको अच्छा बना सकते हो। छोटे बच्चों को किस तरह से पढ़ाना वो आपको पता है, बड़ों को क्या पढ़ाना है वो हमारे दूसरे टीचर्स को पता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये हम बहुत बड़ा सपना देखें, बिकॉज यू हैव टू थिंक बिग, ड्रीम बिग टू अचीव बिग। सोचना तो पड़ेगा, पहले बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा ना। हमें सोचना पड़ेगा कि ये स्कूल के जैसा कोई स्कूल ही नहीं हो, ये तो इंटरनेशनल लेवल का स्कूल हो। यूटी छोड़ो, ये दिल्ली के बेस्ट स्कूल से, मुंबई के बेस्ट स्कूल के बराबर हो। हमारे बच्चों में पोटेंशियल है, हमारे टीचर्स में पोटेंशियल है, हमारी लीडरशिप में कोई कमी नहीं है। तो इन सब के रहते हुए मुझे लगता है हम पीछे नहीं हटेंगे एंड वी विल अचीव, हम बिल्कुल ऊंचाई छुएंगे मैम। तेरी मैं ता जागा रातां नूं, रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। तारे गिन याद च तेरी मैं ता जागा रातां नूं, रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। भुल न पावा तेरी मिठिया बातों नूं, रोक न पावा अखियां विचों गंदियां बरसातां नूं। Just with attitude and never latitude, miss booty, come on baby, do we what? जिस्मों का है ये जलवा, जिस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी नहीं ये जलवा, मकसद भी नहीं ये जलवा। Tell them like it is, I can't hear. दिल कश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये। To chief guest, guest of honor, VAC member, headmaster, their teachers and my dear parents. I'm Jigme Deochen from class 10th and I'm honored to share my experience as a student of high school. Studying here has been one of the greatest opportunities of my life. This school has not only helped me to grow academically but also helped me to shape my confidence, discipline and the way of thinking. And one of the most memorable opportunities I received this year was the chance to travel to Bangalore for a science seminar. And it was the first time I traveled so far for an academic event, and it opened my eye completely to a new world of learning. I got to meet scientists, researchers and many students from different states. And I learned about the future's technologies, space research, robotics and innovation. And this session inspired me to dream bigger and work harder towards my dream. Apart from this, our school has always encouraged us to participate in various activities.
From science exhibition to culture program competition, field trips and awareness campaign. Each activity taught me something new. Teamwork, leadership, communication and problem solving. And our teacher has always support us like a family. And this school has not given me just education, but opportunities that many students only dream of. And I feel proud to be a part of this institution, and I'm grateful to our headmaster ma'am, teachers and my dear parents for believing in me and providing this wonderful platform to learn and grow. And as I move ahead in my academic journey, I'll carry all these wonderful experiences with me, and I promise to make my school proud and use every opportunity wisely. Thank you. La 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 la. Surat yari Jujina Bobo yari Barwe. Respected Thikse Monastery, Thikse Gunpa से आए किनले हमारे थिकसे शे रणवीरपुरा और गांव के गोबा मेंबर्स, हमारे वीसी मेंबर्स अब्बासले, बाकी सबको आई डोंट नो बट थैंक यू ऑल द वीसी मेंबर्स हु जॉइंड अस, हमारे एक्स काउंसलर साहब, बाकी सारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स एंड माय कलीग्स स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैडम ताशी डोलमाले, चंबा साहब, स्कूल के हेड मिस्ट्रेस मैडम यंग डोले, बाकी फैकल्टी मेंबर्स, पेरेंट्स और टीचर्स, हमारे प्यारे बच्चों, एनुअल डे किसी भी स्कूल के लिए बहुत ही बड़ा दिन होता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ बच्चे अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं। आप टीचर्स डिवाइड कर लीजिए, कुछ इंग्लिश स्पीकिंग पे क्लास ले ले, कुछ मैथ्स की ले ले, साइंस की ले ले, कुछ क्विजिंग पे करें, मतलब कोई क्विजेस होल्ड करें, कुछ ड्रामेटिक्स और डिबेट्स पे करें, मगर वो तभी होगा अगर टीचर्स इंटरेस्ट लें। अगर टीचर्स बोलेंगे नहीं अब तो विंटर वेकेशन का नोटिफिकेशन इशू हो गया, हम सब टिकट करा के दिल्ली और गोवा और बैंगलोर जा रहे हैं, फिर नहीं होगा। वो तभी होगा अगर टीचर्स भी सोचे कि अब हमारे पास क्लासरूम्स खाली हैं, वी हैव हमारे सब बच्चों पे मेहनत मत करिए। 200 में से अगर आपको 100 बच्चे लगते हैं जो इंटरेस्टेड हैं, जो विलिंग है, जिनके पेरेंट्स उनको भेजना चाहते हैं, आप 100 बच्चों से शुरू करिए। 20 बच्चों का ग्रुप बना के यूज दीज विंटर वेकेशंस। अब आपके क्लासरूम्स अच्छे गर्म हैं, उतनी सर्दी नहीं है, एटलीस्ट मिडिल क्लास 6 से लेके 10th के बच्चों के साथ आप प्लीज स्टार्ट करिए। डोंट वेस्ट दीज वेकेशंस, और इसी से फर्क पड़ेगा। हर बच्चा 10th में हमारा बच्चा अगर पढ़े तो पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल थिकसे से पढ़े, वो कंपटीशन होना चाहिए। और अगर बच्चे इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं, जैसा कि मैडम डायरेक्टर ने भी बोला, इससे पता चलता है कि टीचर्स कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये बच्चों के घरों में तो अंग्रेजी इंग्लिश नहीं बोली जाती है, घर में सब लद्दाखी, हिंदी या नेपाली बोलते हैं, मगर इतने कॉन्फिडेंस से बच्चे यहाँ पर इंग्लिश बोल रहे हैं और बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन है, सही उनका द डिक्शन इज सो राइट, द ग्रामर इज सो करेक्ट। इसका मतलब टीचर्स ने उनको अच्छे से तैयार किया। तो जब हमारे टीचर्स इतने अच्छे हैं, स्कूल में फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी है, तो फिर 200-250 से बात बनेगी नहीं। और जब हम आप और मामले यंग डोल ने जो हमें कहा है, हम वो सारी फैसिलिटीज़ आपको देंगे, नए स्कूल की बिल्डिंग देंगे, तो फिर हम 400 से कम तो बच्चे होने ही नहीं चाहिए। एवरी कोई बड़ा इवेंट होता है तो वो करने में भी मज़ा आता है जब बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो मेरा आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ एक बार
अपने आसपास की कम्युनिटी को मोबिलाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम इस स्कूल में लेकर आए और जैसा कि हमने बताया हम वो सब फैसिलिटीज़ देंगे जो आप सबको चाहिए, भले ही वो स्कूटी पर्पस हॉल चाहिए वो देंगे, नई साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की लेबोरेटरीज देंगे, कंप्यूटर की लैब देंगे, मगर वो तभी होगा अगर बच्चे पढ़ने वाले हो। आपके पास 11th क्लास में 30-40 बच्चे हो तो हम 2 स्ट्रीम्स दे सकते हैं, इंजीनियरिंग दे देंगे, मेडिकल दे देंगे, कॉमर्स दे सकते हैं, मगर अगर बच्चे ही 12 हो, 8 हो, 6 बच्चे हो, फिर हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है ना कि एक साइंस लैब, क्योंकि एक साइंस लैब अकेले एक लैब बनाने में 4-5 लाख रुपए का खर्चा आता है और अगर पढ़ने वाले सिर्फ 4 या 5 बच्चे होंगे तो हमें भी फिर 2 बार सोचना पड़ेगा कि इससे अच्छा हम किसी और स्कूल में दे दें जहाँ पर रोल ज़्यादा है, जहाँ पर बच्चे ज़्यादा है। तो इसीलिए हमें इस स्कूल को ठीक से का ही नहीं मगर इस पूरी बेल्ट का सबसे ज़्यादा अच्छा स्कूल बनाना है और सबसे बढ़िया स्कूल बनाना है, सबसे बड़ा स्कूल बनाना है। तो उसके लिए आप सबका हमें रिक्वेस्ट चाहिए, आप सबका हमें सपोर्ट चाहिए एंड प्लीज़ ट्रस्ट अस, वी विल नॉट डिसअपॉइंट यू। जैसे मैम डायरेक्टर ने भी बोला है, हम हमारे कैपेसिटी में जितना होगा वी विल गिव द बेस्ट टू द स्कूल। उसी के साथ साथ आई रिक्वेस्ट ऑल दी टीचर्स ऑल्सो कि देखिए अब हमने स्कूल बहुत अच्छा बना दिया है बट दिस इज ओनली दैट वी कैन डू। इसके आगे का सफ़र आपको तय करना है। एक अच्छा स्टूडेंट बनाने के लिए फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे सकते हैं बट पढ़ाना आप लोगों को है। तो जितने टीचर्स हैं उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि देखिए ये बिल्डिंग, ये कमरे, ये क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट लैब्स are not even half of what is required to carve out a nice a good citizen out of a student, है ना। पढ़ाना क्या है, शिक्षा क्या देनी है, तालीम क्या देनी है, वो आप सबको देखना है। किताबें हम आपको दे देंगे मगर वो किताब टीचर कैसा पढ़ाता था और बच्चा कैसा समझता था, सिर्फ उसी कॉम्बिनेशन से डिसाइड हो जाता था कि कौन सा बच्चा टॉप करेगा और कौन सा बच्चा पीछे रह जाएगा। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल द टीचर्स इज कि हमने आपको सबसे अच्छी फैसिलिटी दी है मगर उस फैसिलिटी को यूज़ करना आपको देखना है। जैसे अब हमारे पास काफ़ी कुछ कमरे हैं जो कि सर्दियों में भी ज़्यादा ठंडे नहीं होते। क्या हम कुछ एक्स्ट्रा क्लास रख सकते हैं बच्चों के लिए, इंग्लिश क्लास कंडक्ट करने के लिए? हम मैथ्स के कुछ सेशंस रख सकते हैं, जैसे आजकल वैदिक मैथ्स एक नया इट्स अ न्यू ट्रेंड। बच्चे बिना कैलकुलेटर के कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, 3 डिजिट मैथ्स की। साइंस टीचर्स क्या कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकती हैं जिससे वो बच्चों को ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करें। अगर आपको कुछ स्पेशल क्लासेस चाहिए, स्पेशल सब्सक्रिप्शन चाहिए ऑनलाइन क्लासेस के, वो हम आपको देंगे। बट आई वुड रिक्वेस्ट मैडम यंगडोले, बिकॉज आपके बच्चे इतने ब्राइट हैं तो उनको सिर्फ अकेडमिक्स तक नहीं रखना है, आप उनके लिए स्पेशल ड्रामेटिक्स की क्लास, अगर आपको लगता है 5-7 बच्चे हैं वो आर वेरी गुड, को भी एक मौका मिलता है ये सबको बताने के लिए कि उन्होंने पूरे साल क्या क्या किया, क्या अचीवमेंट्स रही। जैसा कि अभी मैडम यंगडोले ने भी बताया कि हमारे बच्चों ने बहुत इनफैक्ट जैसे यांगचन, वन स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 10th हु वेंट टू बैंगलोर एंड मतलब शी शेयर्ड हर एक्सपीरियंस। तो हमारे बच्चे अब सिर्फ लद्दाख में नहीं, दिल्ली तक नहीं, मगर हम बैंगलोर तक पहुंच गए हैं। तो दैट स्पीक्स फॉर द स्कूल। मतलब आप सबको बहुत खुशी होनी चाहिए, हम सबको बहुत गर्व है स्कूल पर कि जैसा मैडम ताशीली ने बताया था कि आज से 6-7 साल पहले यहाँ पर 100 बच्चे भी नहीं थे कुल। आज बच्चों का रोल भी बड़ा है और बच्चों की क्वालिटी भी बहुत बड़ी है। जैसा मैडम ने भी बोला, हम लोग भी वहाँ बैठकर जब बच्चों को सुन रहे थे कि 9th-10th में ये बच्चे इतनी अच्छी इंग्लिश इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहे हैं, 14-15 साल के बच्चे स्टेज पर आराम से कंफर्टेबली पूरा प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उन्होंने सेल्फ डिफेंस की ड्रिल दिखाई। तो ये स्कूल हर चीज़ में आगे निकल गया है, सिर्फ पढ़ाई में नहीं। पढ़ाई में तो इन्होंने बहुत ही अच्छा किया। पिछली साल इनका 10th का रिजल्ट बहुत अच्छा था, इस बार भी मैं उम्मीद करती हूँ कि 100% 10th का रिजल्ट आएगा। टीचर्स जो स्टैंडर्ड 10 को पढ़ा रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी भी हमारे पास 3 महीने हैं, तो प्लीज़ सी टू इट कि एक भी बच्चा हमारा शुड नॉट अंडर परफॉर्म। एवरी चाइल्ड शुड स्कोर एटलीस्ट 70%।
हर सब्जेक्ट में, क्योंकि आई गेस 7 कितने स्टूडेंट्स हैं 10th में? 17 बच्चे हैं। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो वो 17 के 17 बच्चे 70% से ऊपर लेकर आए, वो आप लोगों को देखना है। दूसरा, आप सबको पता है कि हमारी स्कूल की बिल्डिंग ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। एक बार कुछ उसमें थोड़ा बहुत काम बचा है, वो हम कोशिश करेंगे कि अगले वर्किंग सीजन के 2 महीनों में हो जाए, और वी विल ट्राई कि बाय द एंड ऑफ मई या जून तक आपको वो हम स्कूल बिल्डिंग हैंड ओवर कर दें, और फिर आप उस स्कूल में शिफ्ट हो जाए तो नया स्कूल में हम अपना नया सेशन स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ पीएम श्री स्कूल, हमें 2 साल हो गए पीएम श्री स्कूल बने हुए, और आप सबको पता है कि पूरे ले में सिर्फ 16 स्कूल है जो पीएम श्री स्कूल है। करगिल में 21 स्कूल है, तो कुल मिला के पूरे यूटी में केवल 37 स्कूल्स हैं, जो 37 स्कूल हैं जो पीएम श्री है। उसमें से एक स्कूल थिकसे का ये हाई स्कूल है, और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब हमारे पास लगभग 800 स्कूल है, 750 स्कूल है, 750 में से केवल 37 स्कूल, और उसमें से एक स्कूल ये पीएम श्री स्कूल ये थिकसे का है। और इस स्कूल को क्योंकि पीएम श्री है, बहुत ज़्यादा फंड्स मिलते हैं, यहाँ के बच्चों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कि 9th और 10th के बच्चों को एक्सपोजर ट्रिप के लिए बाहर लेकर जाते हैं, और उसका पूरा खर्चा गवर्नमेंट पे करती है। और 9th और 10th के सभी बच्चे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मेरिट होता है। हर बच्चा जो जाना चाहे, जिसके पेरेंट्स इजाज़त देंगे, सभी बच्चों को हम लेकर जाते हैं। तो जब आपके बच्चों को हम किताबें फ्री देते हैं, यूनिफॉर्म फ्री दे रहे हैं, बाहर एक्सपोजर ट्रिप के लिए लेकर जाते हैं, सबसे अच्छी टीचर्स हम पीएम श्री में आते हैं, तो फिर स्कूल का रोल मुझे नहीं लगता है कि 200 या 250 तक रुकना चाहिए। On a stage and receive their prizes. Starting with 3rd position, the 3rd position goes to Tanzin Desal from LKG class. Zordar taaliyan please stage to receive your prize. 2nd position goes to Rasmaya Tamang. And the 1st position goes to Tanzin Kunsal. Let's give them a big round of applause. Congratulations to each of you for your excellent efforts. Now from UKG class, 3rd position goes to Nazirul Mehdi. 2nd position goes to Sapna Tamang. And the 1st position from UKG is Tanzin Nangsal. Congratulations, champion. You have made us all proud. From class 1st, there is a 2 student who is 3rd position. First is Tanzin Dazir. From 1st class, please come on the stage. And the 3rd one is Santosh Bahadur Tamang. He is also 3rd position. Santosh. Second position goes to Arshu Sakina. Arshu Sakina, उनका कोई पेरेंट्स आ जाए यहाँ पे। Arshu Sakina. You know, Arshu Sakina. Arshu Sakine. Second position Arshu Sakina.